بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فور نیوز ود خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں خواجہ عدنان۔ ناظرین، ایران کا امریکہ پر سفارتکاری کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن، جو کہ اس نے 10 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی، اس کی خلاف ورزی پر ایران نے یہ الزام لگا دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی 2 بڑی سٹیل فیکٹریوں اور پاور پلانٹس اور دیگر بنیادی ڈھانچے کے علاوہ سویلین اور جوہری مقامات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ بات کہی ہے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے، اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بھی کہنا ہے کہ خطے کے ممالک جو ہیں وہ ترقی اور سلامتی اگر چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ایرانی صدر نے یہ کہا ہے کہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران حملوں میں پہل نہیں کرتا، جب ایران کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں ایران اپنی جوابی کارروائی کرتا ہے، اور اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو اب نشانہ بنایا جائے گا تو اس کا جواب بھرپور طریقے سے ایران دے گا۔ تو ناظرین، واقعی جب بھی ایران کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو ایران اس کے جواب میں جواب دیتا ہے، چاہے وہ اسرائیل سے ہو، چاہے وہ کسی بھی عرب ممالک کے بیڑے جو ہیں امریکن اس سے ہو، یا ایئر اسپیسز جو ہیں ان سے ہو، تو ایران جو ہے وہ اپنا حق جو ہے محفوظ رکھتا ہے کہ اس کا جواب دے۔ تو ایران کے اسی جواب سے جڑی ایک خبر یہ ہے کہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے جواب میں اس نے اسرائیل پر کلسٹر بموں سے دوبارہ حملہ کیا ہے۔ یہ جو 84ویں لہر گئی ہے، اس میں بہت سخت قسم کا تل ابیب کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو روسی میڈیا کے مطابق ایران نے تل ابیب میں کثیر المنزلہ عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے، اور جبکہ اسرائیلی فضائی حدود میں میزائل داخل ہوتے ہی سائرن بج اٹھے اور شہری جو ہیں وہ اپنے شیلٹر کی جانب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اچھا، اسرائیل میں ایران کے اس کلسٹر بموں میں ایک شخص جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی ہے اور 2 افراد سے زائد لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کویت کی الشویخ بندرگاہ میں امریکی بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں سے 3 جو ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے اور 3 جہازوں کو جو ہے وہ شدید نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو جناب، مزید یہ کہ دبئی میں ساحل اور اس کے ہوٹلوں پر خودکش ڈرون جو ہے وہ ایران بھیج رہا ہے، کیونکہ ایران نے 2 دن قبل یہ کہا تھا کہ اگر ان سپیسز سے ہٹ کے اگر امریکی کسی جگہ پر بھی ہوٹلوں میں بھی اگر پناہ لیں گے تو ہم ان کے ہوٹلوں پر بھی جو ہے وہ حملے کریں گے۔ تو ایران نے اپنے خودکش ڈرون جو ہیں وہ امریکی اہلکاروں کی ہلاکت کے لیے وہاں پہ بھیجے تھے، اور جس سے خبر یہ آ رہی ہے کہ کچھ امریکی اہلکار جو ہیں ان کے مرنے کی اطلاعات ہیں۔ تو ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق حملہ وعدہ صادق کی چہارم نامی آپریشن کے تحت جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے علاقے الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا جانے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی توانائی کی تنصیبات پر مزید حملے 10 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اچھا، عرب میڈیا کے مطابق لبنان کی مزاحمتی جو تنظیم ہے جس کا نام حماس ہے، انہوں نے بیروت میں اسرائیلی جنگی طیارے پر زمین سے فضا میں مارنے والا میزائل فائر کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو جناب، میڈیا رپورٹ کے مطابق حزب اللہ جو ہے انہوں نے پہلی بار زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا استعمال کیا ہے۔ تو جناب، حزب اللہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی افواج کے خلاف 80 سے زائد انہوں نے کارروائیاں کی ہیں۔ تو جناب، دوسری طرف جو ہے وہ حزب اللہ جو ہے وہ بھی زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے اور اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہی ہے۔ تو تل ابیب کے اوپر جو اسرائیل کے وسط علاقے میں حملے کیے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور کاروباری مراکز جو ہیں ان کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ تو جو ان کا نواحی ایک علاقہ تھا گواتانامیم، اس میں جو ہے وہ بہت سخت تباہی ہوئی ہے اور وہاں پہ ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ ملبہ ہٹا رہی ہیں، اور اسرائیل جو ہے اس وقت جو ہے وہ ٹوٹلی غزہ کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور اسرائیل کی اس تباہی کے اندر کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں اور ان کی ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو چھپا رہا ہے۔ لیکن ترجمان ایرانی فوج جو ہے ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے امریکی فوج کے 2 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں پر 500 سے زائد فوجی موجود تھے۔ دبئی میں ایک مقام کے اوپر 400 امریکی فوجی ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ایک اور مقام کے اوپر 100 سے زیادہ امریکی فوجیوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ دونوں مقامات کو جو ہے وہ گائیڈڈ میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو جناب، وہاں پر ایمبولینسز کئی گھنٹے تک جو ہیں وہ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھاتی رہی ہیں۔ مزید ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرمپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ خطہ امریکی فوجیوں کا قبرستان بنے گا۔ تو جناب، بہت زیادہ امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، یہ اس نتیجے میں کہ جب امریکہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو جب توڑتا ہے، کہتا ہے کہ 10 دن کے لیے ہم ایران کے اوپر ان کی توانائی کے پوائنٹس کے اوپر حملے جو ہیں وہ مؤخر کرتے ہیں، تو جب ان الفاظ کو جو کہ امریکہ کہتا ہے اس کے اوپر قائم نہیں رہ جاتا، تو اس کے بدلے میں ایران جو ہے وہ جوابی کارروائی کرتا ہے اور اتنی بڑی تباہی جو ہے وہ پھیلا رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ اس نے یمن سے داغے جانے والے میزائل کی نشاندہی کی ہے۔ حوثی باغیوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران کے خلاف کارروائیاں نہ رکیں تو وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یمن کے جو حوثی باغی ہیں یہ بھی اسلحے سے لیس ہیں اور ان کے پاس بھی کافی مقدار کے اندر جو ہے وہ اسلحہ موجود ہے۔
तो अगली खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो त्यारा बरदार बहरी जहाज हैं जेराल्ड पर ईरानी हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है। तो देखिए अभी हाल ही में हम डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ की तस्दीक भी कर दी है कि ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े जो त्यारा बरदार जहाज़ को 17 मुख्तलिफ जावियों से जो है वो निशाना बनाया है। तो आप खुद सोचें कि इतने बड़े बड़ी बेड़े के ऊपर जब 17 मुख्तलिफ साइड से हमला किया जाएगा तो उसको आप खुद तो सोच सकते हैं कि उसकी तबाही का मंजर क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान का हमला बहुत शदीद था, जहाज पर मौजूद लोग जो हैं वो जान बचाने के लिए भागते रहे। तो इसका जब उन हमलों का जवाब जो है वो ईरान देता है, इसराइली हमलों का, तो इसराइली क्या करते हैं आगे से उसका सारे का सारा गुस्सा जो है वो फ़लस्तीनियों के ऊपर निकालते हैं। तो कुछ वीडियोज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं जिसके ऊपर इसराइली फ़ौज जो है वो आम निहत्थे शहरी जो हैं फ़लस्तीनी हैं उनको पकड़कर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करना शुरू हो गए हैं। वो इस वजह से कर रहे हैं कि उनको पता है कि लुबनान और यमन से उनके ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से ईरान जो है वो भी इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है। सोचने की बात है कि ईरान क्यों कर रहा है? ईरान तो इसलिए कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो ये जंग जो है वो ईरान ने शुरू नहीं थी की। ये जंग जो है इसराइल ने शुरू की थी और अमेरिका को अपने साथ लेके आया था, इस जंग के अंदर शामिल किया था। तो जनाब जंगी नतीजे जो हैं वो इस तरह के जो हैं वो रुख इख्तियार कर रहे हैं। अगली अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक जो है वो दोबारा एक राब्ता हुआ है, जो कि 1 घंटे से ज़्यादा ये बातचीत जारी रही है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और अमन की कोशिशों और हालिया सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल की जानिब से ईरान पर मुसलसल हमलों ख़ुसूसन गुज़श्ता रोज़ शहरी तनसीबात के ऊपर जो है वो जो हमले किए हैं, उन पर शदीद मज़म्मत की है और मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया है और उन्होंने 1009 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया के ऊपर गहरे दुःख और अफ़सोस का इज़हार किया है। तो जनाब पाकिस्तान जो है वो फुल फ्लेज अपने हमसाये मुस्लिम मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। क्यों? कि उसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं देगा और अगर इसी तरीके से इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर आगे काबिज़ होंगे, तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि समझ लीजिए कि इसराइल जो है वो अरबों के ऊपर भी काबिज़ हो जाएगा। तो पाकिस्तान बेसिकली इस वक़्त ईरान को बचाने के लिए अरबों को भी बचा रहा है और कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि किसी तरीके से ईरान और अरब में आपस में जो है वो किसी किस्म की जंग ना हो। तो ये इस किस्म के हालात से ये खित्ता जो है वो गुज़र रहा है। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को अपने नायब वज़ीर-ए-आज़म साकडार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अमेरिका और खलीजी इस्लामी ममालिक के साथ जारी सफारती राब्तों के बारे में भी जो है वो आगाह किया है और उनको बताया कि जिनका मकसद खित्ते में मुज़ाकरात के साथ एक साज़गार माहौल जो है वो बनाना है। तो जनाब इन्हीं हालात की कड़ी के अंदर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा जो है उसने तस्दीक कर दी है कि जनाब मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा जो हैं 29 और 30 मार्च को पाकिस्तान आएँगे। तो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इसराइली वज़ारत ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ाद फैसल बिन फ़रहान आले सऊद, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ेदान और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती इस्लामाबाद जो है वो पहुँच रहे हैं। वज़राए ख़ारजा खित्ते में कशीदगी को कम करने की कोशिशों समेत अहम इलाक़ाई अमूर जो हैं उनके ऊपर तफ़सीली जो है वो तबादला ख़्याल करेंगे। अच्छा तो अफ़गानिस्तान से एक खबर ये है कि अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं वो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो गए हैं और उन्होंने उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। यानी कि जब से मौलवी हैबतुल्लाह ने जो है वो इंडिया का साथ देना शुरू किया है और उनके इस साथ के बाद जो है वो एक तालिबान का एक गिरोह है, अफ़गान तालिबान के अमीर जो हैं हाफ़िज़ नूरुद्दीन जो हैं। यानी कि आप खुद अंदाज़ा कीजिएगा इस वक़्त टीटीए जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है वो भी बढ़ चुकी है और उनके गिरोह के जो अमीर हैं हाफ़िज़ नूरुद्दीन बहादुर, उनका ये कहना था कि मौलवी हैबतुल्लाह इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन है और हैबतुल्लाह ने ईरान की जंग में सहूनियों और भारत का जो है वो साथ दिया है। हैबतुल्लाह के खिलाफ जो है वो जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, इसलिए जनाब उन्होंने इनके खिलाफ जो है वो खुल्म-खुला एक वीडियो पैगाम जारी किया है और अपने जो तालिब इल्म हैं उनको कहा है कि इनके खिलाफ जो है आप हमले तेज़ कर दें। अच्छा अगली खबर ये है कि भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में सैयद आसिम मुनीर जो हैं हमारे फील्ड मार्शल उनके चर्चे हैं। जनाब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो है, उसमें एक शहरी को जो है वो ओमपुरा जंगलात जो हैं उनके हेडक्वार्टर के सामने खड़े होकर, यानी कि फौजी हेडक्वार्टर जो है उनके सामने खड़े होकर एक कश्मीरी नौजवान जो बहादुर नौजवान था, उसने ये नारे लगाए हैं कि वी लव यू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो जनाब उसने बहुत बड़ा काम किया और इसकी वीडियो जो है ये वायरल हो चुकी है और सार्फिन की जानिब से इस पे जो है वो मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये उसने बेवकूफ़ी की, अपनी जान को मुश्किल में डाला है और कुछ लोगों का कहना यह है कि ये उसके ईमान की निशानी है कि उसने सच और जो हक है उसकी बात की है और तो उसने इंडियन फौज के सामने खड़े होकर ये हक का अलम जो है उसको बुलंद किया और कहा है कि हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ज़िंदाबाद हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए किसी जगह पर ईमान की हालत ये होती है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने ईमान के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो हक और सच की बात करते हैं और कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर जो है वो अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है और वो पर्दा जो है वो उनको अपना दिमागी तवाज़ुन
खोने पर मजबूर कर देता है। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ कि अक्लमंद सोच कर बोलता है और लिखता है, जबकि बेवकूफ़ जो होता है वो बोल कर और लिखने के बाद सोचता है कि मैंने ये क्या किया है। अच्छी खासी रोज़ी लगी हुई थी, 7 करोड़ पीएसएल और 20 लाख तनख़्वाह, और ये सब कुछ इसके अलावा जो इसके पास जो एडवर्टाइजिंग कंपनियाँ थीं, उनका पैसा, और इसकी जो है टोटल मेडिकल जो है वो फ्री था, बच्चों की तालीम फ्री थी। सब कुछ एक ट्वीट ने सत्यानाश कर दिया है। तो जनाब सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं इसके ज़ाया हो गए हैं। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ कि नसीम शाह की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह ने एक ऐसी मुतनाज़ा ट्वीट की है जो इनके गले पड़ गई है। तो मकसद ये है कि इनका दिमागी तवाज़ुन जो है उसके अंदर, मैं माज़रत से लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो यूथियाबन भरा हुआ था जो कि गुबार उसका निकला है। उस ट्वीट ने इसका सारा मुस्तकबिल जो है वो तबाह कर दिया है। जब दिमाग में इंसान की ये चीज़ें चल रही हों तो फिर गिला तो नहीं करना चाहिए किसी बात पे कि यार फिर ये कहना कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, फिर ट्वीट डिलीट कर दी गई। अगर इंसान कोई भी बात करने या कुछ भी लिखने से पहले इंसान सोच ले कि मैं इसका अंजाम क्या होगा, तो मैं समझता हूँ कि नसीम शाह ने सबसे बुरा काम ये किया है कि उसने कुल्हाड़ा जो है, वो जो बेवकूफ़ी का कुल्हाड़ा था, वो अपने पाँव के ऊपर मारा है, जिसकी वजह से अब मेरा नहीं ख्याल कि उनका मुस्तकबिल जो है वो अब सिक्योर है। अब उनकी बकिया ज़िंदगी जो है वो इन्हीं बयानात की नज़र हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।